الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آپ کے تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی چند آیتیں تھیں جس کے پہلی آیت کا ترجمہ ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں کو فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ آج جس موضوع پہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کو ویلکم کیسے کریں، اسی پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ایک واقعہ، ایک کہانی سن لیں۔ جاپان کے اندر کسی کمپنی میں ایک مسلم لڑکا کام کرنے کے لیے گیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے اپنی ایک جاپانی دوست جو لیڈیز تھی اس سے بتایا، اس نے کہ آج سے ہمارا روزہ شروع ہے۔ تو اس جاپانی لڑکی نے پوچھا کہ اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا کہ آج ہمارا روزہ شروع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم لوگ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ تو بے ایمانی کرتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر سے پہلے جو کچھ بھی کھانا ہو کھا لیتے ہیں سحری میں، اور سورج غروب ہونے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کچھ کھانا شروع کرتے ہیں اور دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس مسلم نوجوان نے پیش کیا تو اس جاپانی لڑکی نے کہا، واہ بھائی، آپ کے تو بڑے مزے ہیں، بہت اچھا ہے، یہ سب کام آپ لوگوں کو صرف ایک مہینہ کرنا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو تو یہ کام 12 مہینہ پڑتا ہے، 12 مہینہ اس کام کو کرنا پڑتا ہے کہ نہ تو جھوٹ بولنا ہے، نہ کوئی دغا دینا ہے، نہ تو مال میں ملاوٹ کرنا ہے، نہ تو چیٹنگ کرنا ہے، نہ تو غیبت کرنا ہے، نہ تو فراڈ کرنا ہے، نہ کوئی دھوکہ دینا ہے۔
तो कहने का मकसद यह है कि इस्लाम की जो तालीमात है, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, आपको रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल दिया गया, आज कितना पीछे हो चुका है। एक लड़की इस तरह से सवाल उठा रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई तालीमात पे, कुरान के बताई हुई तालीमात पे। इससे हम अपना अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी क्या हैसियत है दुनिया के अंदर, हम किस शक्ल में अपने आप की, अपनी पहचान और अपने कुरान की पहचान और अपने नबी की पहचान करवा सके हैं। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। बात रमजान का इस्तकबाल कैसे करें, इस पे हमें बात करना है। तो पहली चीज आप जहन में रख लीजिए कि जो रोजा लफ्ज है अरबी जबान में, इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज होता है सौम और दूसरा लफ्ज होता है रमजान, और दोनों कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल है। सौम के माने होता है अरबी जबान में रुक जाना। उसको अगर और जरा उसको खोलेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, उसकी इस्तिलाह बनाएंगे, तो भूखे प्यासे रहने का नाम भी आप बोल सकते हैं। लेकिन बात बनेगी नहीं। बात कहां से बनेगी? आइए हम लोग अरबी जबान की डिक्शनरी को जब देखेंगे तो अरब वाले बोलते थे कि आज हमारा घोड़ा रोजा है। जब इस तरह का जुमला अरब वाले इस्तेमाल करते थे कि भाई हमारा आज घोड़ा जो है रोजा है, तो इसका मतलब ये होता था कि उसको भूखा और प्यासा रख के खूब सहरा, जंगल और चटियल मैदान में खूब उसको दौड़ाएंगे, खूब उसको दौड़ाएंगे। उसके पीछे उनका क्या मकसद होता था कि जब वक्त आ जाएगा, कभी ऐसी जगह हम लोग फंस जाएंगे जहां पर कि न पानी होगा न चारा होगा, तो कैसे हमारा घोड़ा इन सब भूख और प्यास को बर्दाश्त करके किस तरीके से वो हमारा साथ देते हुए आगे बढ़ेगा। तो एक तरीके से वो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी तरबियत होती है। तो उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने उस घोड़े की जो एक्टिविटी होती है, घोड़े को जो तरबियत दे के रोजा के जरिए जो तैयार किया जाता था कि वो किस तरीके से सफर में इसका साथ देगा, किस तरीके से जंग में उसका साथ देगा, किस तरीके से हर मामलात में अपने मालिक का साथ देगा, उसी लफ्जों को अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल के ईमान वालों को दे दिया और कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज कर दिया गया है, सियाम को फर्ज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग भूखा प्यासा रख के किसी को चीटिंग पहनाना, किसी को टोपी पहनाना, किसी को दगा देना, किसी को गिबत करना, किसी की गिबत करना, किसी का माल हजम करना, किसी का चोर चोरी से गया और हेरा फेरी से नहीं किया वाली मिस्ताक बनना, अगर ये सब चीजें हमारे अंदर पैदा हैं और ये सब हम कर रहे हैं रोजा रख के, तो हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लहू हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े और गलत काम करना ना छोड़े, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना छोड़े और अपना पीना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, कम मिन साइमिन यसुमु लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जो। कितने रोजा रखने वाले ऐसे हैं जो रोजा तो रहते हैं लेकिन उनके रोजे का कोई फायदा नहीं है सिवाय इस बात के कि वो भूखा रहते हैं। आज भी हमारे दरमियान एक कैटेगरी बहुत जबरदस्त हो रही है कि फजर बाद नमाज पढ़ के या नमाज बगैर पढ़े जैसे भी हो वो सो जाते हैं और पता चला कि असर के वक्त उठते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, कम मिन काइमिन यकुमु लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला शहर। कितने रात को क़याम करने वाले लोग ऐसे हैं जिनके क़याम का उनको कोई फायदा नहीं होता सिवाय इस बात के कि वो रात जगा करते हैं। तो सियाम के एक मानी हो गया कि हमारी एक तरबियत होती है। हर मुल्क अपने कौम को, हर मुल्क अपने फौजी को एक ट्रेनिंग कैंप देती है, उसके जरिए से वो तरबियत करती है। इसी तरीके से इसका भी ही मकसद होता है और मकसद बता दिया आगे, लअल्लकुम तत्तकून। और दूसरा जो लफ्ज होता है वो होता है रमजान। अरबी जबान में रम्ज बोलते हैं तेज धूप को, चिलचिलाती हुई धूप को रम्ज बोलते हैं। जब यहां से माना निकला तो धीरे धीरे एक माना वहां से निकला
कि तेज धूप में, चिलचिलाते हुए धूप में बकरियों को चराना। फिर वहीं से जब वो माना निकाले तो इसका मतलब ये निकाला कि गुनाहों को जला देने वाला वक्त, गुनाहों को जला देने वाला महीना इसी रमज से निकला हुआ है। आप इसके मकसद की तरफ जाइए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। क्या मतलब होता है? यानी इंसानों को गुनाहों से बचाने के लिए, इंसानों को गुनाहों से बचाने के लिए नेकी पर अमल करने की तरबियत देना, यह है इसका मकसद। लअल्लकुम तत्तकून में ये बातें आती हैं। अगर कोई इंसान नेकी पर अमल करने की तरबियत कर रहा है, इधर गुनाह से नहीं बच रहा है, तो उसका कोई मकसद उसके रोजा रखने का नहीं होगा। इसी तरीके से आप जब आगे जाएंगे तो एक माने और यहां से निकलता है, बुराइयों से बचाकर नेकी की तरफ ले जाने वाली तरबियत, और उस पे बराबर एक तरबियत के तरीके से अमल करते रहना। मिला जुला की जो कहानी बनती है वो इसी तरह की बनती है, और इसके अलावा और कुछ बनती नहीं है। अगर इंसान लाख रोजा रहे, उसके अंदर अगर गुनाहों से बचने की हिस्स पैदा नहीं हुई, गुनाहों से बचने की उसने कोशिश नहीं की, नेकी पर चलने की उसने कोशिश नहीं की, तो उस रोजे के मकसद को वो हासिल कर ही नहीं सकता है। अब आइए हम जरा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस दर्स का मौजू है रमजान का इस्तकबाल हम कैसे करें। आइए उसकी तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत मशहूर है, आप उसको जानते हैं कि एक मरतबा आप मेंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, तो जैसे पहले जीने पे चढ़ा आप, तो आपने आमीन कहा, दूसरे पे आप चढ़े, फिर आपने आमीन बोला, तीसरे पे आप चढ़े, आप फिर आमीन बोले। खुतबा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपके अंदर एक नई तब्दीली देखी है कि आप मेंबर के हर स्टेज पे चढ़ रहे थे और आप आमीन बोल रहे थे, इसके पीछे क्या मकसद था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उन्होंने आके तीन बातें हमको बताई। तरतीब हो सकता है कि मैं आगे पीछे कर दूं, लेकिन मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं। उसमें एक बात यह थी, आपने कहा कि जो अपने माँ बाप को या माँ बाप में से एक को अगर वो पाले अपनी जिंदगी में और उनकी खिदमत और सेवा करके जन्नत हासिल ना कर सके, तो वो बड़ा बदनसीब है। गोया फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की उस आदमी पे, और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बोल दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही हो जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी, या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे, तो बड़ा बदबख्त, बड़ा बदनसीब है। अब हम गौर कर लें कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक रखे हुए हैं। दूसरी चीज आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और जो आदमी आप पर दरूद न भेजे, तो वो भी बहुत बड़ा बदनसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रवाज मुसलमानों हमारे बीच में है कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो आमतौर से लोग अपनी जबान पे सबसे छोटी दरूद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अदा किया जाता है। इसी तरीके से तीसरी चीज आपने ये फरमाई थी कि जिसने जो रमजान का रोजा पाया और उसमें अपनी बख्शिश न कराया, तो वो भी आदमी बड़ा बदनसीब है। अब कितना मैंने अभी तक, या आपने, या हर किसी ने रमजान का रोजा पाके अपने बख्शिश का कितना सामान किया है, वो खुद वो तय कर ले, इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। बहरहाल रमजान एक तरीके से खुशनसीबी और बदनसीबी की अलामत है। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं, खुशनसीबों वाले में हैं या बदनसीबों वाले में हैं। बताने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, सहाबा की जिंदगी में देखते हैं कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और आपके जमाने में किस तरीके से रमजान का इस्तकबाल क्या करते रहे, रमजान का वेलकम क्या करते रहे। तारीखी रवायत भरी पड़ी है, आप पढ़िएगा तो साहबे कराम 12 महीने को 6-6 महीने में तकसीम कर दिया करते रहे। रमजान गुजरने के बाद
6 महीने तक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन दुआ किया करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमने रमजान में इबादतें की थी उन इबादतों को तू कबूल फरमा ले, उन तिलावत को कबूल फरमा ले, उन दुआओं को कबूल फरमा ले। 6 महीने तक सहाबा दुआ किया करते रहे। और फिर जो दूसरा 6 महीने आता था तो उसमें सहाबा कराम दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे दे कि हम अगला जो रमजान आने वाला है उसको हम पाले। तो 6 महीना आपने दुआ किया करते रहे जो इबादत की है उसके लिए, और 6 महीना दुआ किया करते रहे जो आगे आने वाला रमजान है। 2 हिस्सों में बांट के वो इस तरीके से क्या करते रहे। हमारी क्या हैसियत है, हम कितना दुआ करते हैं रमजान को पाने के लिए, हम कितना दुआ करते हैं रमजान के बाद में रमजान की उन इबादत के लिए जो हम कर चुके हैं। ये खुद हम अपने नफ्स से पूछें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने नफ्स पर खुद गवाह है कि कितना वो दुआ किया है और कितना नहीं दुआ किया है, और सहाबा की तारीख आपके सामने मौजूद है। बहरहाल आइए एक दूसरी रिवायत देखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया, सबसे पहले आप कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। ये सहाबा की नंबर 1 कैटेगरी के हैं। ये उस वक्त के सबसे बड़े फकीह इनको माना जाता है। फकीह सबसे समझ वाला आदमी, कुरान और हदीस का सबसे जानकार आदमी उस वक्त इनको माना जाता था। इनसे लोगों ने सवाल किया कैफ़ कुंतुम तस्तक़बिलून रमजान, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बताइए कि आप लोग रमजान का इस्तकबाल कैसे किया करते रहे। देखिए कितना सादा सवाल है, आप रमजान का इस्तकबाल कैसे, सहाबा आप लोग कैसे रमजान का इस्तकबाल किया करते रहे। तो आपने जवाब दिया था मा काना अहदुना यजअलु अलल इस्तकबालिल हिलाली व फी क़ल्बिही ज़र्रतुन वहदतुन अला अख़ीहिल मुस्लिम। हम सहाबा में किसी की ये जुर्रत नहीं होती थी कि रमजानुल मुबारक का चांद देख लेने के बाद उसके दिल में अपने किसी मुस्लिम भाई के मुतालिक किसी तरह का कोई कीना और छल हो। आप फिर से सुनिएगा तर्जुमा, आपने क्या जवाब दिया, रमजान का इस्तकबाल करने का तरीका क्या सिखा रहे हैं सहाबी। फकीहुल दीन के सबसे बड़े फकीह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद दर्स लिए हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे हुए क्या बयान फरमा रहे हैं। हम में से किसी सहाबा के अंदर ये जुर्रत नहीं होती थी कि रमजानुल मुबारक का चांद देख लेने के बाद उनके दिलों के अंदर अपने किसी भाई के मुतालिक किसी तरह का कोई कीना और कोई बुग़्ज़ और कोई छल हो। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि रमजान से पहले सहाबे कराम अपने दिल को किस तरीके से साफ कर लिया करते रहे, किस तरीके से नीट और क्लीन कर लिया करते रहे। दुआओं की फिक्र करते रहे वो लोग इसी तरीके से, यानी उनका दिल बिल्कुल साफ और बिल्कुल पाक हुआ करता रहा। उसके अंदर किसी तरह की कोई कुदूरत, कोई गंदगी, कोई मैल, कोई छल, कोई कपट, कोई छक्का पंजा नहीं रहा करता रहा। इसी तरीके से ये इस राज की बात को हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जिसको एक दूसरे तरीके से उसी वक्त इसी रवायत के अंदर फुज़ैल बिन अयाज़ बयान करते हैं कि लम युद्रिक मन इंदना मन अदरक बिकसरति सियाम वला सलात फइन्नमा अदरक बिसिक़ाइल अनफुस व सलामति सुदूर व नस्हिल मोमिन। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ बयान करते हैं कि पहले के लोगों को जो इतने बुलंद मकामात मिले थे उसकी बुनियाद न उनके नमाज थे न उनके रोजे थे, उसकी बुनियाद
न उनके नमाज थे न उनके रोजे थे, बल्कि उनके दिल बड़े प्यारे थे, उनके दिल बड़े सादे थे, जिसके लिए मैं सादा और प्यारा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं उसको खोलूंगा। उनके दिल बड़े सीधे सादे थे। आगे बयान फरमाया, वनसहुल मोमिन, मोमिन के लिए खैरखा होते थे, नसीहत करने वाले होते थे। और आगे आपने बयान फरमाया, उनके दिल बड़े साफ और वाजे हुआ करते रहे। आज अगर हम गौर करें तो जो राज उन्होंने बताया है कि उस वक्त सहाबा का दिल रमजान से आने से पहले किस तरह का बन जाया करता रहा, तो क्या कहीं ऐसा हुआ होगा क्या कि अभी रमजान आने वाला है, दिल ऐसी बना लो जैसी रमजान गुजर जाए, फिर एक दूसरे के प्रति छक्का पंदा, एक दूसरे को काटना पीटना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना फिर शुरू हो जाए? ऐसा रहा होगा क्या? कतई नहीं रहा होगा। यह है असल राज। हमारी इबादतें कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि हम रमजान के रोजे तो रख रहे हैं, लेकिन वो छक्का पंजे से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसकी भी जितनी भी उम्र हो वो तय कर ले कि उसकी क्या हैसियत है। अभी तक उसने रमजान के जितने भी रोजे रखे हैं क्या कैफियत रही है। एक शेर आपने सुना है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसी तरीके से दूसरी रवायत में जो लफ्ज आते हैं, बिसक़ाइल अनफुस, उनको महंगी जन्नत की फिक्र होती थी, दौलत का उनके पास, माल की उनके पास कोई कीमत नहीं हुआ करती है। और उसी रवायत में इस तरह के अल्फाज भी हैं, लैसल इब्रु बिकसरति सियामिहिम वला सलातिहिम वला सदकातिहिम, उनके मकाम को, उनकी हैसियत को न उनके नमाज ने बुलंद किया, न उनके क़याम ने बुलंद किया, न उनके रोजे ने बुलंद किया, न उनके सदकात ने बुलंद किया, नहीं, बल्कि क्या हुआ, लिसलामति सुदूरिहिम, उनके मकाम को बुलंद करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज आई वो उनके सीने बिल्कुल सलामती वाले थे, बिल्कुल साफ और शफाफ थे, वो इंसानों से प्यार करने वाले थे, उनके सीने प्यारे थे। इस बुनियाद पे अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद किया था। नमाज, रोजा और हज और ज़कात ये तो फर्ज है, करना ही पड़ेगा। अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो दर्जात की बुलंदी कहां से मिलेगी, नेकियां कहां से मिलेंगी, नेकी की तरफ मन कैसे लगेगा, बुराई से रुकने की तबीयत कैसे आमादा होगी। यह नुक्ता है उसके अंदर कि उनके सीने कीने और छल से अपने भाई के लिए पाक हुआ करते रहे। इसीलिए कहा लैसल इब्रतु बिकसरति सियामिहिम, ये जो मकाम उनको नसीब हुआ उनके ज्यादा नमाज पढ़ने, ज्यादा रोजा रखने, ज्यादा सदका देने से नहीं हुआ था, बल लिसलामति सुदूरिहिम, उनके सीने की सलामती की वजह से मिला था। उनके सीने बहुत ज्यादा प्यार करने वाले थे। अब आप गौर कीजिएगा फुज़ैल इब्न अयाज के इस सिस्टम को जो आपने बयान फरमाए हैं कि उनको बुलंद मकाम कहां से मिला। सुदूर का जो सलामती का लफ्ज है, जिसके हमने सादा और प्यारे का तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान मजीद ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह शूरा के अंदर, आयत नंबर मैं याद नहीं रख पाता हूं, लेकिन मुझे कुरान मजीद का पेज नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद है कि कौन से रब से किस पेज पे आया है, कहां आया है, कौन सी लाइन में आया है, इसको मैं बता सकता हूं आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं आपने बताई, कुरान में है, उसके बाद में ये आयत है जो मैं पढ़ रहा हूं, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जिस दिन नहीं नफा देंगे किसी को उसका माल और न उसके बेटे, मगर जो अल्लाह के पास आएगा सलामती वाले दिल के साथ, कल्ब सलीम के साथ। तमाम मुफस्सिरीन को आप उठा के देख लीजिए तारीख के अंदर, सलीम का मतलब सबने आमतौर से यही लिया है बेऐब दिल, ऐसा दिल जिसके अंदर किसी तरह का कोई छक्का ना हो, कोई पंजा ना हो, कोई कीना ना हो, कोई बुग़्ज़ ना हो, कोई हसद ना हो। अब आप गौर कीजिएगा, बुग़्ज़ किसको कहते हैं? बुग़्ज़ कहते हैं वो मकरूह चीज जिससे दिल को नफरत हो जाए
اور دل اس سے اتنا اوب جائے, اتنا بیزار ہو جائے کہ اب اس کو دیکھنے کی طبیعت نہ کرے. تو یہ جو جس کو بولتے ہیں ہمارے چھل, جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں دل کے اندر میل آ جانا, اسی کو عربی زبان میں بغض بولا گیا ہے. بغض کا جو لفظ آتا ہے, اپنے یہاں گبز گبز عام طور سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, بات تو سمجھ رہے ہیں نا جو ہم لوگ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا لفظ آتا ہے حسد. حسد میں کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی تمنا کرے کہ فلانے کے پاس جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اس کو پاس سے ختم ہو جائے. ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو ہمیں نہ ملے, لیکن اگلے کے پاس سے ختم ہو جائے. تو یہ بغض اور حسد, یہ دونوں چیزیں ان صحابہ کے دلوں میں نہیں رہتی رہی. رمضان کا مہینہ آتا رہا, تربیت کا مہینہ آ رہا ہے. آپ کو اگر دوڑنا ہے کسی کمپٹیشن میں, تو کیا کسی آپ اس آدمی کو دوڑائیں گے جس کے پیر میں چوٹ لگی ہے, جس کے پیر میں موچ آ گئی ہے, جس کا گھٹنا خراب ہے؟ کس کو دوڑائیں گے آپ؟ پہلے اس کو صحیح ساتھ بنا لیں گے, جب ہی تو آپ دوڑائیں گے نا بھائی. تو اسی طریقے سے یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے دل کو صاف تو کر لو, کم سے کم روزے کی عبادت تو قبول ہو جائے, اتنا تو سوچنا ہی پڑے گا نا. تو ذرا سے گھما کر سوچیں گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. شاعر کہتا ہے نا, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استفتی نفس کا, اپنے نفس سے تم فتویٰ پوچھ لیا کرو. تو استقبال رمضان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. باتیں چل رہی تھی کہ سب سے پہلا صحابہ کا نشانہ کیا ہوتا تھا کہ دل کے اندر کسی طرح کا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وہ لوگ بھرپور کوشش کیا کرتے رہے. صحابہ نے پوچھا, تابعی نے پوچھا, شاگردوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ نے یہ جواب دیا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ کے سردار, انصاریوں کے سردار, ان کے بارے میں آتا ہے جبریل علیہ السلام خود آئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت دیے کہ ان کے انتقال پہ عرش جھوم گیا تھا, ان کا جنازہ بالکل ہلکا ہو چکا تھا, اور یہ غالباً 30 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تھے, اور 36 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو چکی تھی. 6 سال میں ان کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے کہ سنو, ابھی میت کھلا فی هذه الباب من هذه الباب فهو اہل الجنہ. ابھی جو آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ آدمی جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن دیا صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر کہ دیکھتے رہو, ابھی جو آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ آدمی جنتی ہے. صحابہ چوکے, کون آدمی آ رہا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ جنتی ہے؟ صحابہ بھی اپنی آنکھ لگا لیا اس دروازے کی طرف, دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, چلے آ رہے ہیں, وضو کیے ہوئے ہیں, بائیں ہاتھ میں جوتا ہے, جوتی لیے ہوئے ہیں, داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے. آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھے, پھر آپ وہاں سے چلے گئے. ایک صحابی سوچے کہ یار یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کر رہے, جنتی کیسے ہوگا؟ ایک صحابی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کو واچ کرتے ہیں, ان کی ریڈنگ کرتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا دیا کہ وہ جنتی ہے. 3 دن تک ان کے ہاں تشریف رکھے رہے, ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو اپنے نگاہ میں رکھے رہے, لیکن کوئی چیز ان کو نہیں ملی جس سے وہ بات جان سکیں کہ یہ کس طریقے سے کون سا عمل کرتے ہیں. بہرحال جب 3 دن ہو گیا تو انہوں نے پورا ماجرے سنا دیا کہ بھیا دیکھیے ہم کوئی مہمان نہیں تھے, ہم فلانی جگہ کے رہنے والے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ایسا کہا, تو ہم وہی دیکھنے کے لیے آ گئے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں لگا, جیسے آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک لوگوں سے نصیحت کی باتیں کرتے ہیں, ایسی تو ہم بھی کرتے ہیں. کیا چیز آپ کے اندر ہے خاص جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کے آپ کو جنتی قرار دیا؟ کچھ تو ہے آپ کے اندر. وہ خاموش رہے.
फिर जब वो सहाबी जाने लगे तो हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको बुलवाया और कहा यहाँ आइए। आपने कहा कि 3 बात मैं आपको बता दे रहा हूं जो राज की है और मैं यही करता हूं। एक दूसरी रवायत में इस तरह के अल्फाज भी आते हैं कि रात में 2-4 मरतबा इस तरह की आवाज आती रही उनके बेडरूम से, अल्लाहु अकबर की, अल्लाहु अकबर की। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि वलैसा फी कल्बी बुग़्ज़ुन, मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता है, वला ग़िम्रुन वला हसदुन, बुग़्ज़, ग़िम्र, हसद। मैंने आपको बुग़्ज़ समझा दिया, किसी के बारे में मैल रखना। मैंने आपको हसद समझा दिया, किसी के बारे में हसद रखना। अब ग़िम्र समझ लीजिए आप, मिसाल के तौर पे उसको मैं मिसाल से समझाऊंगा। अरबी में इसको ग़िम्र बोलते हैं, इसको बेसिकली गिठान बोलते हैं, गिरह मार लिया। पता चला कि मेरा झगड़ा किसी से 6 साल पहले हुआ था किसी बात को लेकर। अब आदमी उसी वक्त से अपने दिल के अंदर एक गिठान मान लिया कि जब भी मौका मिलेगा इसको पलटा मारने का या इसको धोखा देने का या इसको चोट मारने का, हम इसको चोट मारने से नहीं चूकेंगे। इसी चीज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो गिरह मार लिया था। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यही कहा कि 3 चीज अगर आपके अंदर है तो कोई सवाल ही नहीं है कि इबादत कबूल होने की। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने 2 सहाबी से यही बयान फरमाया कि 3 चीजें आप रखिए, पहला कीना, दूसरा गिरह मारना, तीसरा हसद। अगर ये चीजें पाक है हमारी तो समझ लीजिए, अगर हम इससे इन ऐबों से पाक है तो समझ लीजिए कि आने वाले जो तरबियती कोर्स जो हम लोग करने जा रहे हैं, तरबियत का महीना, उसमें कुछ फायदा होगा। नहीं तो सड़े बदन में कौन सी देसी घी पिला के आप उसको पहलवान बना लेंगे। पहले तो उस मरज को तो ठीक कीजिए। मरज ठीक ही नहीं कर रहे हैं और चले हैं जो है कि देसी घी पिलाने, उसको अच्छा अच्छा पकवान खिलाने, मेवा खिलाने, अखरोट खिलाने, नहीं चलेगा ना। पहले आप उसका इलाज तो कीजिए। इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सहाबा ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत किए हुए सहाबा ने इलाज बताया कि उस सीने से उस घृणा को निकाल दो, उस मैल को निकाल दो, उस ऐब को निकाल दो जो किसी के प्रति तुम्हारी है, तब जाके तो तुम्हारी रमजान के रोजे कबूलियत के पहुंचेंगे। इसी तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है मुख्तलिफ हदीसों के अंदर, काना अहब्बु इला शुहूरी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबान थुम्मा यसिलहु बिरमज़ान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब बातें होती रही कि वो रमजान से पहले बहुत ज्यादा शाबान के रोजे रहा करते रहे, फिर उसको रमजान से मिला देते रहे, सुम्मा यसिलहु बिरमज़ान, फिर उसको रमजान से मिला देते रहे। ये अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर है 2431। यानी रमजान की तैयारी करनी है, लेकिन अभी तैयारी कब से शुरू कर दिया उन्होंने? शाबान के अंदर रोजा रखना शुरू कर देते रहे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी यही वो रवायत है कि आप शाबान में सबसे ज्यादा रोजा रखते रहे। आप कहती है कि मैंने नहीं देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा किस महीने में रमजान को छोड़ के रोजा रखते रहे। वो सिर्फ शाबान का महीना होता था, बल्कि सिवाय चंद दिन छोड़ के, बल्कि कभी कभी पूरा शाबान ही रोजा रख लिया करते रहे। बताइए, अभी रमजान में ट्रेनिंग करनी है, तरबियत लेना है, तैयारी शाबान से कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत देखिए उम्मती के साथ। आपने मुसलमानों को मना कर दिया कि भाई 15 तारीख के बाद में रोजा मत रहा करो। अगर कंटिन्यू रहते आए हो लगातार मुसलसल तो बात अलग है, आमतौर से मत रहा करो। तो ऐसी मेहरबानी खुद रह रहे हैं,
اور امت کو منع کر دیے ہیں کہ کیوں؟ تاکہ انسان کے اندر چستی اور توانائی آئے اور رمضان کے روزے کو اچھی طریقے سے رکھ سکے. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، رواه الترمذی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نہیں دیکھتا رہا کہ وہ 2 سال 2 مہینہ مسلسل وہ روزہ رکھتے رہے ہوں، لیکن 2 مہینوں کے شعبان اور رمضان مسلسل آپ روزے میں گزار دیتے رہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے کیوں ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی تو جواب دیا تھا نا کہ شعبان سے پہلے رجب آتا ہے، محرم، رجب، شعبان، رمضان، اس طرح سے ہوتا ہے نا. تو اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتنے لگتا ہے رجب کے مہینے میں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. وَأَحَبُّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اور میں پسند کرتا ہوں ان یرفع اعمالنا، کہ میرے اعمال بلند کیا جائے، وانا صائم، اور میں روزے کی حالت میں ہوں. وجہ بھی آپ نے بتا دیا، شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. یہی آئی نا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اب آپ بتائیے ایمانداری سے کہ کیا ہم لوگوں نے اگر 20 سال سے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، 20 سال تک ہم لوگ لگاتار روزہ رکھے ہیں، تو شعبان کے روزے کی کبھی ہم نے پرواہ کی ہے کیا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائے دیکھ لی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میسج، یہ پیغام ہم کو دے رہے ہیں کیا؟ صحابہ اس پیغام کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو، بخاری اور مسلم شریف کے اندر اس پیغام کو نوٹ کر کے ہمیں کیوں دے دیا گیا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں. بھائی جب شیطان جکڑ دیا گیا بیڑی میں، تو اب ہم کو بہکانے کے لیے کہاں سے کون آ جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کون بہکا دیتا ہے ہم کو؟ کہاں سے ہم بھاگنے لگتے ہیں؟ اس نقطے کو سمجھیے گا. شیطان 2 طرح کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الجنتی والناس، ایک جناتوں والا شیطان ہوتا ہے اور ایک انسانوں والا شیطان ہوتا ہے. جو انسانوں والا شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے نفس میں بیٹھا ہوتا ہے. انسانوں والا شیطان انسان کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، تعلقاتی بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا من بھی ہو سکتا ہے جو اس کو بہکاتا ہے. کیوں بہکاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو پاک ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی کی شکل میں پیدا کرنا چاہتا. اور اسی طریقے سے اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو سب سے کامیاب بزنس مین آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کامیاب تاجر کون ہے؟ کامیاب بزنس مین کون ہے؟ آپ کہیں گے بھائی وہی ہے جو کاروبار کے سیزن آنے سے پہلے اپنی پوری ٹریڈنگ، اپنا پورا مال بالکل تیار رکھے کہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوگا ویسے ہماری فروخت، ہماری بکری چالو ہو جائے گی. ایک کامیاب تاجر کی پہچان ہوتی ہے. جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھیں گے آپ جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، بڑی بڑی دکان والے ہیں، انہوں نے کنٹل کے حساب سے ہر مٹیریل اپنی دکانوں میں رکھ لیا ہوگا. رمضان آ رہا ہے، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم بھی اپنے نفس کو ان علائشوں سے، ان قدرتوں سے پاک کر لیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رکنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنا اہم مہمان ہوگا، جیسے داماد آئے گا گھر میں تو اس کے لیے مٹھائی اور کچھ اور پیش کیا جائے گا. سسر آئیں گے
तो दामाद के मुकाबले में थोड़ा सा उसको कम इज्जत दी जाएगी। आमतौर से मेहमान आएंगे तो उनको एक अलग इज्जत दिया जाएगा। फूफा आ गए तो उनकी एक अलग हैसियत होती है, मामू आ गए तो अलग हैसियत होती है। ये आदमी तय करता है हर घर के अंदर। तो जैसा मेहमान वैसे उसकी मेहमान नवाजी, खिदमत गुजारी। बिल्कुल इसी तरीके से रमजान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहमानी, जिस जो इस्तकबाल करने को कहा है, उसके साया निशान अपने को करना है। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना जा रहे थे तो मदीना वाले रोजाना अपने घरों से निकल के सहरा में आके अपने असलहों और हथियारों के साथ सज धज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल के लिए डेली खड़े रहते थे, उनका वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो क्या रमजान के लिए सहाबा ने जो गाइडलाइन हमको दिया, जो तरीका हमको सिखलाया इस्तकबाल का, हम उसको पूरा ना करें? कुछ सोचिएगा और इंशाअल्लाह बात आपके समझ में और हमारे आ जाएगी। 3 काम और होते हैं जिसमें बड़ी खैर और बरकत है, जिसको हमको करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, नहीं तो रमजान का कोई, रोजे का कोई मतलब निकलेगा नहीं। सबसे पहली चीज कि हमारा जो मकसद होना चाहिए रमजान में वो होना चाहिए कि हमारा रब राजी हो, और दुआएं शाबानी से शुरू हो जाना चाहिए। अगर रज़ा इलाही नहीं है, अगर अल्लाह की रजा के लिए हम अपने रोजे को खालिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, जो अपने लिए पसंद हो वही दूसरों के लिए हम पसंद करें। अगर ये भी जज्बा नहीं है तो हमारा रोजा किसी काम नहीं आएगा। तीसरी चीज, सदका करें। ज़कात की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सदका, जो आप, अल्लाह ने जो माल दिया है, आप अगर साहिब निसाब नहीं है फिर भी सदका करें। इसके जरिए से क्या होगा? खैर और बरकत फैलेगी माशरे के अंदर। इसी तरीके से अजीब मामला होता है माशरे के अंदर, दौलत कोई कमाता है, खाता कोई है, हिसाब कोई, किसी को देना पड़ेगा। जो कमाएगा उसको हिसाब देना पड़ेगा, जो खाया है, जो लुटाया है, उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि सबसे बड़ा बदनसीब, एक आलिम बयान करता है कि सबसे बड़ा बदनसीब आदमी वो है जो अपनी आखिरत को बिगाड़ ले किसी की दुनिया बनाने की खातिर। आज जो हम एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, किसके लिए पहना रहे हैं? 50 साल की उम्र हो गई, 55 साल की, अब अगर हम चीटिंग करेंगे, धोखा देंगे लोगों को, तो किसके लिए देंगे? अपने बच्चों के लिए ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कद अकला अयालुहु हज़नातहु, अब तुम यहां क्या लेके आए हो? तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी मेहनतें, तुम्हारी इबादत तो तुम्हारे परिवार ने खा लिया पहले ही। सबसे बड़ा बदनसीब आदमी वो है जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले किसी और को दुनिया बनाने के चक्कर में। तो अजीब मामला, खाया कोई और हिसाब देने के लिए अल्लाह किसी को पकड़ रहा है। इसी तरीके से लैलतुल कद्र की फिक्र करें, जिसकी 6 घंटे की रात, लैलतुल कद्र की 6 घंटे की रात 84 साल 4 महीने के बराबर इबादत की होती है। उसको पाने की, उसके बारे में फिक्रमंद रहने की कोशिश करें। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये दुआ जो होती है, ये मुस्तजाबुद दावत होती है रमजान की। रोजेदार की दुआ ऐसी है जो हर हाल में कबूल होती है। तो सिर्फ हमारे यहाँ एक रिवाज मैंने देखा जबलपुर के अंदर, जब अफ्तारी का वक्त होता है तो लोग फट से हाथ उठा के अफ्तार के सामने बैठ के दुआ करना शुरू कर देते हैं। चलना फिरना हर वक्त, जो साहिब रोजा होता है उसकी दुआ हर वक्त कबूलियत के लिए मौजूद रहती है। अब वक्त का इंतजार मत क्या कीजिए, जहां पर भी रहे इसका आप एहतमाम करें। इसी तरीके से तमाम औकात को जिंदगी में रमजान के महीने में गुजारने के लिए एक अज़्म करें, एक इरादा करें, एक पुख्ता इरादा करें, अभी से उसकी रिहर्सल चालू कर दे। अभी हमारे 1-2 दोस्त हैं जबलपुर के अंदर जो जिम करते हैं, जब उनके मुकाबले का वक्त आता है तो 2-2 3-3 4-4 हफ्तों भर मैंने देखा उनको, साहब चाय नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वहां नहीं बैठेंगे, तरह तरह की पाबंदी लगा के रखे हुए हैं। जिम में जाना है उनको बॉडी बिल्डिंग दिखाने, पहनते ही नहीं, चाय नहीं पियेंगे साहब, पानी नहीं पियेंगे, ये दवा वो दवा इस तरह की खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जिम में जाना है प्रैक्टिस के लिए।
तो हमें भी तो 30 महीने 30 दिन और 29 दिन की रमजान की ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग करनी है तो उससे पहले कम से कम कुछ तो तैयारी कर ले भाई, कुछ तो तैयारी कर ले। एक तैयारी और है बड़ा अच्छा हम लोग के अंदर, शक्कर, चीनी, बेसन, फलाने ठिकाने, गोश्त, पैसा सब इकट्ठा कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी आलिया ने कहा है कि वो शक्कर, बेसन और फलाने फलाने ला के रख दीजिए, आगे रमजान आ रहा है। वल्लाह बता रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा। अरे हमने कहा भाई तुमको इसी की फिक्र लगी हुई है। बहरहाल बात घूम जा रही है। एक चीज और मैं आपको बहुत इख्तिसार के साथ बताऊंगा कि घर वालों को भी रमजान के मसाइल से आप वाकिफ कराइए कि कैसे 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 रमजान में क्या क्या चीजें करनी है। इसी तरीके से बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन कहूंगा जरूर, अल्लाह माफ करे, आपको बुरा लगता रहे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 साल है, अब 10 साल से आप नमाजी बन चुके हैं, तो 10 साल में क्या आपने अपने मोहल्ले की लिस्ट बनाई कि कौन आदमी, कितने आदमी ऐसे हैं जिनको हमारे माल की जरूरत है, जिनको हमारे सदका की जरूरत है। कुरान मजीद के अंदर 2 लफ्ज आते हैं, एक लफ्ज आता है फकीर, दूसरा लफ्ज आता है मिस्कीन। फकीर का मतलब जरूरतमंद रहे या न रहे, मांगेगा आपसे। जरूरतमंद है कि नहीं तो बात की बात है, लेकिन वो मांगेगा आपसे। और मिस्कीन सेकंड से बना हुआ है, सीन काफ नून, जिसके माने होता है ठहरना। उलमा बयान करते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि वो ससुर मांगेगा भी नहीं आपसे, आपको ढूंढना है कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्ते में, आपके ताल्लुकात में, आपके घर में, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में कौन मिस्कीन है। 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 25 साल से रोजा रख रहे हैं, भाई कुछ तो अकल ला लो, कम से कम उनकी लिस्ट बना लो कि कौन कौन हकदार है। अब आप कहेंगे लिस्ट बना के हम क्या करेंगे, क्या हम उन तक पहुंचा पाएंगे? अजीब आदमी है आप। अभी आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ, उसके लिए आपने सोच लिया कि इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है 35 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। इसके बारे में आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला आज आप नियत करेंगे अपने रिश्तेदारों तक ताउन देने की, हो सकता है कि आपको अल्लाह उसी साल तौफीक दे दे, हो सकता है कि 5 साल के बाद तौफीक दे। लिस्ट बनाने में कौन सा आपका पैसा लग रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो कहा ना कि आदमी अगर नेकी की नियत करता है, अगर उस पर किसी वजह से अमल नहीं कर सका तो उसका भी उसको सवाब मिलेगा। मालूम है ना ये चीज सबको? तो इस तरह से क्यों नहीं सोच लेते हैं? आप लिस्टिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए, कुछ नहीं तो आधा आधा किलो के, एक एक पाव के पैकेट खजूर के उन तक घर तो पहुंचा दो भाई। ये भी नहीं कर पा रहे हैं हम। भले दावेदारी से मैं बोल रहा हूं, हमारे मोहल्ले के अंदर हमने देखा कि छोटा सा ठेला है, उस पर मुश्किल से 10, 20, 50 डबल रोटी रखी हुई है, वही बेच रहा है। उसको चुपके से कम दे दो यार, उसका सामान खरीदो, इसलिए खरीदो कि हमारा भाई सगा है। ओ वहां से आया चंदा करने के लिए, आपने उसको उठा के दे दिया। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने ताल्लुकातियों से एक डबल रोटी खरीद लिया करो रमजान में, ये भी उसके लिए सदका होगा। तो लिस्ट बनाइए, किस चीज की? अपने घर के खाने की नहीं। आपके मोहल्ले में कौन ऐसे लोग हैं जो आपके माल के मुस्तहक है? मैं मानता हूं कि आज हम आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हर साल हम लिस्टिंग करते रहे, एक एक पाव खजूर भेजते रहे, तो आगे चल के इंशाअल्लाह अल्लाह नियतों के दम पे इंसान को उसका अज्र देता है। बिल्कुल खुली हदीस है ये, तो ऐसा मिलेगा। और आप करके देखिए, लिस्टिंग करना पड़ेगा आपको। मैंने किया है, मैं करने की कोशिश करता हूं। अब चूंकि बात पहली मरतबा जियाउद्दीन भाई ने मुझे मौका दिया तो मैंने बोल दिया। ये बहुत अहम चीज है, बहुत ही अहम चीज है। आप पता कीजिए, सल्फ सालीन घरों में जाके पता किया करते रहे, कहाँ चूल्हा जल रहा है, कहाँ आग नहीं जला हुआ है। आज भी ऐसे लोग जबलपुर के अंदर होंगे। तो इसकी जरूरत है, जो हमें और आपको करना पड़ेगा। कौन किस हालत में है, उसको कितना देना है। आखिरी बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने कुरान में 3 मरतबा कहा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सही और गलत में फर्क करने वाली किताब है। हिदायत और वाज़ेह दलाइल पे ये मुश्तमिल है। ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों दिया?
ایک بیان میں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والے رات میں نازل فرمایا. ایک تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تین جگہ اس کتاب کے نازل ہونے کو بیان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میں اس کا ترجمہ کر دے رہا ہوں. بے شک رمضان اور قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. رمضان بولے گا کہ اے اللہ یہ بندہ تیری رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا. قرآن بولے گا کہ اے اللہ یہ بندہ تیری رضا کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کے، اپنی نیند کو قربان کر کے قرآن مجید کی یعنی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو اس کو بخش دے اور اللہ اس کو بخش دے گا. تو قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک چیز جو بڑا افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت پتا ہے وہ بھی اگلے تک پہنچا دے جس کو پتا نہیں ہے. اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع سے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ ان تک اس پیغام کو پہنچا دے گا جو یہاں موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے استقبال کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.